Hello children. Now in this video we are going to discuss the next chemical property of, or you can say the next chemical reaction of amines, and that is reaction of amines. The heading is reaction of amines with aryl sulfonyl chloride is the heading in NCERT, but in place of aryl group we are going to take phenyl group, that is benzene C6H5 derivative. So you can say that we are going to do the reaction of amine with benzene sulfonyl chloride. Benzene sulfonyl chloride, and this benzene sulfonyl chloride is also called as a very important reagent called as Hinsberg's reagent. It is also called as Hinsberg's reagent, and the formula for Hinsberg reagent, as its name suggests, is you will write the बेंजीन डिराइव्ड फिनाइल ग्रुप. बेंजीन से जब एक एच हटा देते हैं तो जो बचता है वो बचता है C6H5, तो उसे ही कहते हैं फिनाइल. सो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम बेंजीन, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग बेंजीन सल्फोनिल. So sulfonyl chloride, this is the formula for benzene sulfonyl chloride, and this is called as Hinsberg reagent. So now this is the chemical species with which we have to see the reaction of amines. Now you note down all the three class of amines: primary, secondary and tertiary amines. They show different behavior while reacting with benzene sulfonyl chloride. Now if we expand the formula C6H5SOCl2, then you see how can we write that. So this is phenyl group, SO2, sulfur is joined with oxygens by double bond, and then Cl. This is the expanded form of benzene sulfonyl chloride, and we said all the three categories will react, or we will see whether all are going to react or not, and if they are reacting, how they are reacting. So first of all we will talk about the reaction of primary amine, that is 1 degree amine with the benzene sulfonyl chloride. So first of all let us write the benzene sulfonyl chloride. We will write the expanded form so that we can understand well कि reaction हुई कैसे. तो हमने benzene sulfonyl chloride लिख लिया है. Then we will take any of the primary amine. कोई भी आप primary amine ले ले, which will be 1 degree. आप RNH2 फॉर्मूला लिख सकते हैं, बट एनसीईआरटी में R को C2H5 स्पेसिफाई करके लिया है, सो लेट अस टेक इन दैट वे. सो वी आर गोइंग टू टेक C2H5NH2, प्राइमरी अमाइन है, इथाइल अमाइन. ओके, नाउ यू कैन सी यहां से HCl रिलीज होने की सिचुएशंस बन रही हैं. इज इट क्लियर? ये जैसे ही आपने फॉर्मूलाज लिखे दोनों, you will understand that HCl can be removed from these species, और HCl हटाने के बाद जो बच गया उसे जोड़ के लिख देंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा. इट्स दैट इजी. सो अब देखें, हम प्रोडक्ट लिखने जा रहे हैं, जैसा जैसा दिख रहा है वैसा वैसा लिखते जाएं. ये रहा ग्रुप फिनाइल, इस पर SO2 जैसा जुड़ा है वैसा लिख दें. यहाँ से Cl हट चुका है, छोड़ दें. हाइड्रोजन हट चुका है, ये भी छोड़ दें. अब जो बचा उसे जोड़ दें. ये बचा है NH और C2H5. ये बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट, एंड देन प्लस HCl. इट्स वेरी इजी, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं. इफ यू नो द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड एंड 1 डिग्री अमाइन, यहाँ आप RNH2 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है. CH3NH2 भी लिख सकते थे, बट आई एम टीचिंग एज पर एनसीईआरटी. दैट इज वाई एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल मेंशन्ड है मैंने वो ही लिया है. नाउ व्हाट इज दिस प्रोडक्ट फॉर्म्ड? So note that when 1 degree amines, they react with benzene sulfonyl chloride or your Hinsberg reagent, they form N-alkyl benzene sulfonamide. तो यहाँ पर alkyl ग्रुप है C2H5, तो इसका नाम हम N-alkyl नहीं बोलेंगे, क्योंकि alkyl ग्रुप हमें पता है कि इथाइल है, तो हम बोलेंगे N-इथाइल. नाइट्रोजन से कौन जुड़ा है? इथाइल ग्रुप, इसीलिए एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ऐसे इसका नाम आएगा. बेंजीन
सल्फोनामाइड। Note down that the product which is formed by reaction of this Hinsberg reagent and 1-degree amine, 1-degree amine कोई सा भी हो, मिथाइलामाइन, इथाइलामाइन, ठीक है, वो जब भी इस हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करता है, जो कंपाउंड बनता है वो हमेशा NaOH या KOH यानी एल्कली में सल्यूबल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 डिग्री जो प्रोडक्ट बनाती है दैट इज सल्यूबल इन एल्कली। एल्कली मतलब बेस, वाटर सोल्यूबल बेस, जैसे KOH NaOH में ये प्रोडक्ट डिसॉल्व हो सकता है। सो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमाइन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। नाउ लेट अस सी द बिहेवियर ऑफ सेकेंडरी अमाइन और द 2 डिग्री अमाइन। फिर से बिल्कुल इसी पैटर्न में आप रिएक्शन लिखेंगे जैसे ऊपर लिखिए, बहुत आसानी से आप इसे समझ पाएंगे। तो हमने फिर से बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो कि हिंसबर्ग रिएजेंट है लिख लिया है। नाउ वी नीड टू राइट अ 2 डिग्री अमाइन। सो हियर वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ 2 डिग्री अमाइन और रिएक्शन बिल्कुल उसी पैटर्न में प्रोसीड करेगी जैसे 1 डिग्री में थी। 1 डिग्री में क्या होता है, नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, नाइट्रोजन के 2 डिग्री में हमें पता है सिर्फ 1 हाइड्रोजन होता है और ये वाला जो हाइड्रोजन है दूसरा वाला, उसकी जगह जो है आपको एक और C2H5 ले लेना है क्योंकि ये 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री में 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं और हाइड्रोजन एक ही होता है, या आप ऐसा बोल लें कि फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री में NH होता है। तो यहां पर भी आपको जो है HCl निकलने की संभावना दिख रही है, देखिए। तो 2 डिग्री अमाइंस भी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे और बिल्कुल उसी मैनर में करेंगे जैसे 1 डिग्री रिएक्शन करता है और जैसे आपने प्रोडक्ट बनाया था कि HCl हटा दिया था और HCl हटाने के बाद जो जो बचा उसे जोड़ के लिख दिया था। तो यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट बना लेते हैं। ये रिंग, इस पर लगा हुआ है SO2, Cl हट गया, H हट गया, बचा क्या N, और इस N पर प्रेजेंट है C2H5 और नीचे भी C2H5, ठीक है। और साथ में HCl बना है, आप चाहें तो लिखें, अदरवाइज ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान दें, ये जो प्रोडक्ट बना है ये कहलाएगा NN डाई इथाइल। यहाँ 2 ग्रुप है, अगर आप इसे CH3 लेते, यहाँ पर आप C2H5 की जगह दोनों CH3 लेते तो आप इसे कहते हैं NN डाई मिथाइल। या अगर आपने 2 R लिए होते, मान लें स्केलेटन रिएक्शन लिखी होती, तो आप बोलते हैं NN डाई एल्काइल। पर क्योंकि मैंने इथाइल लिया है तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगी, नाइट्रोजन पे 2 बार C2H5 है तो हम लिखेंगे N डैश डाई इथाइल, माने नाइट्रोजन पे 2 बार डाई इथाइल, 2 बार इथाइल ग्रुप है। देन बेंजीन सल्फोनिल, बेंजीन सल्फोनामाइड, इसमें सल्फोनामाइड बनता है, राइट। प्रोडक्ट जो बनता है वो सल्फोनामाइड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट, अब आप ऐसा सोचेंगे कि हम इसे कह रहे हैं, नाम तो हिंसबर्ग टेस्ट बोल रहे हैं और टेस्ट जैसा तो कुछ समझ नहीं आया। 1 डिग्री भी प्रोडक्ट बना रहा है और सेम सल्फोनामाइड बना रहा है और 2 डिग्री भी बना रहा है, तो इसमें अंतर कैसे होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी और नोट करना है कि ये जो प्रोडक्ट बने हैं ये N-इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड भी जो है व्हाइट रेसिड्यू है, यानी जो कलर है वो भी दोनों का सेम है। ये व्हाइट रेसिड्यू है और ये भी व्हाइट रेसिड्यू ही बनेगा, ऐसा कोई और कलर नहीं बनेगा। ये भी व्हाइट रेसिड्यू है, कलर दोनों के प्रोडक्ट का सेम है। अब कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे, तो नाउ द मेजर पॉइंट टू बी नोटेड इज हियर। यहां पर जो प्रोडक्ट बना है वो एल्कली में सल्यूबल होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये रिएक्शन आगे बढ़ाई नहीं है, इसलिए जो है मैंने अभी तक इसकी बात नहीं करी, मगर एक ध्यान देने वाली बात है कि ये रिएक्शन आगे पॉसिबल है। इसमें आप चाहे तो NaOH लिखें साथ में, जो प्रोडक्ट बना है इसमें प्लस NaOH करके लिखें, तो क्या होगा, NaOH का OH और ये नाइट्रोजन का हाइड्रोजन मिलके वाटर निकल जाएगा और जो है आपको सोल्यूबल सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है कि एल्कली सोल्यूबल है, इसीलिए इसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं। हमारा मेन पॉइंट यही बन जाता है कि ये जो प्रोडक्ट बना है 1 डिग्री के साथ वो एल्कली में सोल्यूबल है, या चाहे NaOH हो या KOH हो।
मगर जो 2 डिग्री से व्हाइट रेसिड्यू बना है ये प्रोडक्ट जो है ये एल्कली इनसोल्यूबल है। ये अंतर आ गया दोनों में, यानी कि बनेगा तो दोनों का व्हाइट रेसिड्यू, लेकिन जब व्हाइट रेसिड्यू में आप एल्कली मिलाएंगे NaOH या KOH तो 1 डिग्री का जो व्हाइट रेसिड्यू है वो एल्कली में डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन 2 डिग्री का जो है वो एल्कली इनसोल्यूबल होगा, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। यही डिफरेंस है दोनों में, और इसी के बेसिस पर आप इन दोनों को जो है डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट से 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री की रिएक्शन करा के आप तीनों को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, यानी आप इसे हिंसबर्ग टेस्ट भी कह सकते हैं, विच इज यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। तो प्राइमरी अमाइन के साथ जो है सल्फोनामाइड बना जो व्हाइट रेसिड्यू था लेकिन अल्कली में सोल्यूबल था। 2 डिग्री ने भी सल्फोनामाइड बनाया जो कि अगेन व्हाइट रेसिड्यू था बट वो अल्कली में इनसोल्यूबल था। Now let us talk about the behavior of 3 degree amines in this reaction. So 3 degree amine की रिएक्शन देखने के लिए फिर से जो है हमने लिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, दैट इज योर हिंसबर्ग रिएजेंट, और इसकी रिएक्शन आप फिर से करा दे किससे, आपका 3 डिग्री अमाइन से। तो 3 डिग्री अमाइन में क्या होगा, 3 अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे नाइट्रोजन पर, और हाइड्रोजन यहाँ एक भी नहीं होता तो HCl नहीं निकल सकता, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका ऑब्जर्वेशन आएगा वो आएगा नो रिएक्शन, यानी कि सिंपल सी बात है कि 3 डिग्री इसमें रिएक्शन नहीं देते। 3 डिग्री जो है वो हिंसबर्ग टेस्ट में रिएक्शन शो नहीं करते। तो हमें अगर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री दिया हुआ है तो हम इस रिएक्शन के हिसाब से कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। 1 डिग्री जो है वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर मोनो एल्काइल सल्फोनामाइड बनाता है, मोनो एल्काइल सल्फोनामाइड बनाता है, which is soluble in alkali, soluble in NaOH, which is soluble in NaOH और KOH। मगर 2 डिग्री हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करने पर ये मोनो एल्काइल बनाते हैं, ये डाई एल्काइल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री से बन रहे हैं तो 2 एल्काइल ग्रुप आएंगे, तो डाई एल्काइल सल्फोनामाइड बनाते हैं और रिएक्शन यहीं पे खत्म हो जाती है। आगे एल्कली में वो इनसोल्यूबल होते हैं, सो यू मे राइट दे आर इनसोल्यूबल इन एल्कली। ये एल्कली में नहीं घुलते, तो ये हो गया 1 डिग्री 2 डिग्री में डिफरेंस। और 3 डिग्री जो है वो इसमें कोई रिएक्शन ही शो नहीं करते। अब आप ध्यान रखें, जब भी आप टेस्ट लिखते हैं आपसे अगर रिएक्शन पूछी जाती है तो आपको रिएक्शन लिख के बतानी पड़ती है, बट अगर आप इसे टेस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं तो इतना स्टफ काफी है लिखने के लिए। आप लिख सकते हैं कि 1 डिग्री प्लस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और हिंसबर्ग रिएजेंट या हिंसबर्ग टेस्ट में ये मोनो एल्काइल सल्फोनामाइड बनाएगा जो KOH या NaOH में सोल्यूबल। इतना काफी है, नो नीड ऑफ राइटिंग रिएक्शन इन द टेस्ट। Name of the test and observation is compulsory and is enough for writing the test. So this was all about how amines, different amines, primary, secondary and tertiary, can react with benzene sulfonyl chloride, which is also called as Hinsberg reagent. और ये एक टेस्ट की तरह यूज होता है बिकॉज इस रिएजेंट के साथ, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ तीनों तरह के अमाइंस अलग अलग रिएक्शन देते हैं, अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। दैट इज वाई इट कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट टू distinguish or identify the 3 different types of amines. So that's all for this video. Thank you for watching.